Friends, today we will be revising the important definitions of the Companies Act 2013. First is section 2 subsection 1, which says abridged prospectus. It is a prospectus memorandum containing the salient features of prospectus, and its main provision is under section 33. Then section 2 subsection 6, associate company, which is not a subsidiary company but other company has a significant influence and it may be a joint venture. Significant influence का मतलब कि at least 20% of its total voting power or control or participation in business decisions is held by the other company. Then 2.8, authorize a nominal capital as the capital authorized by memorandum of association to be the maximum share capital of the company. Then 2.11, body corporate or corporation. It includes company incorporated outside India but does not include a cooperative society or other body corporate as central government may specify. Then 2 subsection 12, books and paper. It includes books of accounts, deeds, vouchers, documents, minutes, registers, etc. prepared in paper or e-form. And books of accounts defined in section 213, which means the record of receipts and expenditure of the company, sales and purchase, assets and liabilities and items of cost, etc. Then 2 subsection 16, charge includes mortgage, lien on the property or assets of the company. Then 2 subsection 21, it is company limited by guarantee. 2 subsection 22, company limited by shares. Limited by guarantee मतलब ये होता है कि in case of winding up the liability of the members is limited to the extent they have agreed to pay, that is they have given the guarantee. Then 22 में limited by shares मतलब होता है कि in case of winding up of a company, the members of the company shall be liable to pay the amount of the capital which has been uncalled till date. Then 2 subsection 26 is contributory. Contributory means a person who is liable to contribute towards the assets of the company in the events of its winding up. 2 subsection 30, debentures. It includes debenture stock, bonds or other instrument evidencing debt, whether charge on assets or not. इसके मेन प्रोविजन है सेक्शन 71 और 72 में, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. Then 231 में है deposits. Deposits include receipt of money by way of deposit or loan. 2 subsection 37, employee stock option. Option to employees or directors or officers of the company, giving them benefit of right to purchase or subscribe for shares of company at a future date at a predetermined price. तो ये हो गया employee stock option. Then 2 subsection 40, financial statement. It includes 4 things: balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and explanatory notes. But in case of a one person company, small company, dormant company, it does not include cash flow statement. Then 2 subsection 41, financial year. Financial year in case of company incorporated before 1st January, it is year ending on 31st March every year, and in case company is incorporated after 1st January, then the financial year will be 31st March ending in the following year, that is 1st January से 31st March 2 ही महीने हुए, तो उस 3 महीने हुए तो उसके अगले 31st मार्च को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा. Then 2 subsection 42, foreign company. Foreign company means company incorporated outside India and has a place of business in India physically or in electronic mode and conduct business activity in India in any other manner. कि योगी foreign company. Then 45 में है government company, in which at least 50% paid up share capital held by central government, state government or one or more governments, then that company is called government company, and any subsidiary of a government company will also be a government company. Then 2 subsection 46, holding company, और उसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं 2 subsection 87, जिसमें subsidiary company डिफाइंड है. subsidiary company वो होती है जिसमें कि दूसरी कंपनी जिसको हम होल्डिंग कहेंगे holds more than half of the voting power or controls the composition of board of directors of the company. तो वो जो जिसका कंट्रोल होगा वो होल्डिंग कंपनी और जिसके ऊपर कंट्रोल होगा वो सब्सिडरी कंपनी. 46 और 87. देन 2 सबसेक्शन 44 और 2 सबसेक्शन 48, इनमें डिपॉजिटरी रिसीट है, एक में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है और एक में इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है. ग्लोबल होती है जो ऑथराइज बाय इंडियन कंपनी, फॉरेन में इशू होती है क्रिएटेड बाय अ फॉरेन डिपॉजिटरी, एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट ऑथराइज बाय फॉरेन कंपनी बट क्रिएटेड इन बाय इंडियन डिपॉजिटरी. देन 2 सबसेक्शन 51, की मैनेजरियल पर्सन. इसमें 5 आते हैं: CEO, MD और मैनेजर. इन तीनों में से एक ही होगा. देन CS, होल टाइम डायरेक्टर. CFO,
मतलब CS कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये है मैनेजर। अदर पर्सन नॉट वन लेवल बिलो द होल टाइम डायरेक्टर, तो ये हो गया की मैनेजरियल पर्सन हमारे। देन टू सबसेक्शन 53 और 54, एक में मैनेजर है, उसमें दूसरे में मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजर पर्सन हु हैज मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी बट अंडर कंट्रोल सुपरिटेंडेंस ऑफ द बोर्ड, and managing director enumerated with substantial powers of companies management affairs by its article of association of or board of directors or agreement with the company or resolution in general meeting। इसकी हम डिटेल डेफिनेशन भी देख लेते हैं, एक मिनट। Yes, here it is. Manager, a person who subject to control, superintendent or direction of board of directors, has management of affairs of company. It includes the director occupying the position of a manager, and managing director is a director of company who by virtue of its articles or agreement with company or board of directors or resolution at general meeting is entrusted with the powers of the management of affairs of the company। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी डेफिनेशंस पे, जिसमें अब नेक्स्ट थी टू सबसेक्शन 57 में नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी प्लस रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिडक्टेड बाय एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस व्हिच हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ। ये नेटवर्थ होगी 57। देन उसके बाद 68 में प्राइवेट कंपनी है और 71 में पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी इन विच देयर शेल बी नॉट लेस देन 2 members but maximum 200 members, and the right of transfer of shares is restricted। And to subsection 71, public company means a company in which there shall be at least 7 members but there shall be no restriction regarding the transfer or transmission of shares, and that's public company। और उसके बाद हमारा 269 है प्रमोटर, पर्सन हु इज़ नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न और who has control over the affairs of the company as shareholder, director or otherwise, or who is in accordance with whose advice or directions the board of directors are accustomed to act but does not include a person acting in professional capacity। उसके बाद 2 सबसेक्शन 70 है प्रोस्पेक्टस। रेड इसका हमने पढ़ना है सेक्शन 23 से 33 में हमारी सारी प्रोविजंस है। इसकी डेफिनेशन में एक मिनट में इसमें है, it is defined as the document contains details of price and number of securities. It is filed with ROC before issue opens in case fixed price issue and after the issue is closed in case of book built issue। ये टर्म्स क्या होती है हम देखेंगे, अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और साथ में इट इंक्लूड्स शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 2 सबसेक्शन 76 रिलेटेड पार्टी, जो कि जिसमें साथ में हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहाँ दी हुई है सेक्शन 188 में। देन 2 सबसेक्शन 77 रिलेटिव, इट इज़ any person who has related to each other as a member of HUF or husband and wife or any other prescribed manner, तो वो रिलेटिव होंगे। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में शेयर डिफाइंड है। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक। तो सबसेक्शन 85 में स्मॉल कंपनी बताई है, वेयर पेड हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू 2 crore एंड टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 20 crore। इन दोनों में से एक भी अगर लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 स्वेट इक्विटी शेयर्स है issued to directors or employees of the company at discounted rate or for consideration other than cash for providing know-how or intellectual property of the rights they are given the option to have equity in the company। ठीक है, ये इसके साथ इसकी प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 54 में दी हुई है, तो ये भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपनीज एक्ट 2013। जो हमारा सिलेबस है वो लिखा हुआ है हमने, इसको ऐसे लिख लेंगे तो बेटर है कि सेक्शन याद हो जाएंगे आप नाम के साथ, हेडिंग के साथ। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है कि दिस एक्ट अप्लाइज टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट, दैट इज़ 1956 एक्ट। applies to insurance companies, banking companies, companies engaged in the generation of electricity and other body corporate notified by the central government।
ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, इट रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956, रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 29th August 2013 and came into effect with effect from 12th September 2013. 98 sections came, then remaining section 184 sections on 1st April 2014, because ये एक्ट जो है ये पार्ट्स में इन्फोर्स हुआ था। It introduced various new concepts like OPC, women director, key managerial personnel, etc. उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 में। तो हमने डेफिनेशंस देखी थी। सेक्शन 3 में आ जाते हैं। सेक्शन 3 है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इट सेज दैट इसमें मतलब बेसिकली हम सिर्फ मेन जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो कर रहे हैं, की पॉइंट्स। बाकी डायरेक्ट तो खुद ही पढ़ना बेटर है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर लॉफुल पर्पस बाय 7 or more person, public company. By 2 or more person then it is private company. By 1 person then it is private 1 person company. ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। एंड 1 पर्सन कंपनी में होता ही 1 मेंबर है। मिनिमम क्या, वैसे एक ही मेंबर होता है। और दे शैल बी बिकम मेंबर्स बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। बाय सब्सक्राइबिंग 1 person also by subscribing his name to the memorandum, and along with it he shall file a written consent of one another person who shall be agree to act as a nominee in case of death of that one person. This consent shall be filed with the registrar at the time of incorporation of the company, and it can be changed or withdrawn anytime. And this change or withdrawal will not amount to alteration of articles of association. अब कंपनी ये तो थी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, ये है बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे भी 3 टाइप की कंपनी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। हमने अभी पढ़ा ही है लिमिटेड बाय शेयर्स 2 सबसेक्शन 22 वेयर लाइबिलिटी अप टू अमाउंट अनपेड बाय द मेंबर्स। लिमिटेड बाय गारंटी 2 सबसेक्शन 21 लाइबिलिटी अप टू द अमाउंट गारंटी टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एंड अनलिमिटेड कंपनी वेयर नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस भी आप नोट कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़ी है। देन सेक्शन 3A 2018 में ऐड हुआ। ये क्या कहता है, दैट इन केस द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो द मिनिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 3, दैट इज 7 or 2 or 1, and business is carried on like this for more than 6 months with such number of members, then each member shall be severally liable. All the members continuing with the business shall be liable severally for acts done during such time. देन सेक्शन 4 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है, और इसकी ऑल्ट्रेशन की प्रोविजन दी हुई है सेक्शन 13 में। ठीक है, मेमोरेंडम को हम कॉन्स्टिट्यूशन और चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। इट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड and determine the relation of company and its outsiders, and any act done outside the provision, outside the scope of memorandum, then it shall be ultra vires and is not enforceable. And its form of memorandum is given under table A, B, C, D, E of schedule 1, and it contains 6 clauses: name clause, object clause, registered office, liability, capital, and सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, और एसोसिएशन क्लॉज इसको हम कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज। अब हमारा आता है क्लॉज में क्या होता है। नेम क्लॉज में हम डिफाइन होता है कि कौन से टाइप की कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सेक्शन 8। अगर पब्लिक है तो एंड में लिमिटेड वर्ड यूज़ होगा, प्राइवेट कंपनी है तो एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होगा, और सेक्शन 8 कंपनी कोई एप्लीकेबल नहीं होता। देन ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एंसिलरी ऑब्जेक्ट होता है और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो कि वो ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए ज़रूरी है। देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है विच स्टेट्स वेयर द ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड एंड इट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट। Liability clause, whether company limited by guarantee, by shares or unlimited company. Capital clause, amount of capital with which company is registered, that is authorized capital, और division into shares, number of shares subscribed by members, ये सब डिटेल होती है कैपिटल क्लॉज में। एंड इन केस ऑफ 1 person कंपनी, नेम ऑफ नॉमिनी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ हिज डेथ इज ऑल्सो मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द लास्ट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम है, ये एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न है। इसकी एप्लीकेशन जाती है रजिस्ट्रार को, फाइल होती है जब किसी नई कंपनी ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना होता है, या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी ने अपना नाम चेंज करना होता है, तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स नेम। एंड इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी द नेम इज रिजर्व्ड फॉर 20 days, within these 20 days the company shall be incorporated, and in case of existing company the name is reserved for 60 days
for completing all the formalities from the date of application if the same is approved. If found later after approving the name and company has started its business that the information for in the application was false, then if company is not yet incorporated, then the reserved name is cancelled and penalty of ₹1 lakh is incorporated. And if company is incorporated, then registrar shall direct in तीनों में से एक ऑप्शन क्या, to change the name of the company within 3 months by passing ordinary resolution, and this shall be notified to the registrar within 15 days of the change. ROC का मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, ठीक है. तो अगर मैं कहीं रजिस्ट्रार या ROC लिख रही तो वो वन एंड द सेम थिंग है. तो दूसरी डायरेक्शन क्या दे सकता है, स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी और ही कैन फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बिफोर द ट्राइब्यूनल. ठीक है. उसके बाद सेक्शन 5 है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, इट रेगुलेट्स द इंटरनल अफेयर्स और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और बायलॉज ऑफ द कंपनी होते हैं, इसको कह सकते हैं. इट लेज डाउन द रूल्स रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इट डिटर्मिन्स द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. ठीक है. अब जो हमने मेमोरेंडम पढ़ा था वो रिलेशन डिटर्मिन करता था कंपनी एंड आउटसाइडर्स के बीच में, और ये आर्टिकल है वो कंपनी एंड इट्स मेंबर्स के बीच में रिलेशन बताता है. इसमें है टेबल FGHIJ ऑफ शेड्यूल 1 एंड प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट का एक प्रोविजन ऐड हुआ है 2018-19 वाले एक्ट में. इसमें इसका क्या होता है कि इन केस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर वैसे तो ऑल्ट्रेशन के लिए प्रोविज़न है, बट अगर उसकी ऑल्ट्रेशन को हमने स्ट्रिक्ट करना है तो उसमें एक प्रोविज़न फॉर एंट्रेंचमेंट कर देते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा प्रोविजंस डाल देते हैं ऑल्ट्रेशन के लिए. और ये प्रोविज़न जो है ये इट कैन बी इंक्लूडेड ईदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद फुल मेजॉरिटी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. मतलब ये सेक्शन 6 में दिया हुआ है, मतलब कि कोई भी प्रोविज़न मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ कंपनी में ऐसी नहीं हो सकती है जो कि इस एक्ट की प्रोविज़न को ओवरराइड करे. तो बेसिकली सबसे टॉप पे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है बाकी सब लॉज में, वैसे टॉप पे वैसे कंपनीज एक्ट में है. कंपनीज एक्ट सबसे टॉप पे है, उसके नीचे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके नीचे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और कंपनीज एक्ट के टॉप पे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रहेगा ही हर एक्ट के. देन सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. इनकॉर्पोरेशन के लिए एक एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल की जाती है. रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लाइड विद इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन इट्स रजिस्टर एंड अलॉट अ सिन, जिसका फुल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर to the company. It is a 21-digit alphanumeric code issued by the Ministry of Corporate Affairs by ROC. It is a company's distinct identity. Okay. If after incorporation it is found that incorporation was done by using false information, that there shall be a liability under section 447 जो कि criminal liability होती है. Under tribunal may order winding up of the company or removal of name of the company from the register of members, or liability of members to be unlimited, or any other order as it may deem fit. तो ये incorporation. उसके बाद सेक्शन 8 है कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, NGOs भी कह सकते हैं, वो सब सेक्शन 8 के ही कहेंगे. नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं. इसके फीचर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है इसका प्रमोशन ऑफ कमर्स, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. Apply its profits in promoting its objects. No dividend is declared to the members. License of these companies is issued by central government. No need to add the word limited or private limited at its end. The person or association of persons or firm can be its members. ऑल्ट्रेशन अगर इसके AOA और MOA में कोई ऑल्ट्रेशन होगी तो वो विद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी. एंड कॉन्ट्रावेशन ऑफ सेक्शन 8 अगर कुछ होती है देन इट शैल बी पनिशबल विद ₹10 lakh to 1 crore फॉर कंपनी एंड 25,000 to 25 lakh टू डायरेक्टर इन डिफॉल्ट. देन अगर इसका मर्जर और एमलगमेशन भी होता है, वो लिखा नहीं है, अगर इसका मर्जर और एमलगमेशन भी होता है तो वो किसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही होएगा, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली. देन सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या है, इट शैल बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, पावर टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, पावर टू सू और बी सूड, टू कॉन्ट्रैक्ट. ये उसके राइट्स हो जाते हैं कंपनी के फीचर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. देन सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कंपनीज एक्ट 2019 अमेंडमेंट एक्ट.
Then commencement of business shall be only when within 180 days of incorporation a declaration is filed by the directors that subscriber to memorandum of association have paid full money as subscribed by them in respect of shares subscribed by them, and filed verification of registered office under section 212 subsection 2. Penalty for default of provision of section 10A is कंपनी को 50,000 डायरेक्ट और ऑफिसर को 1,000 ईच डे subject to maximum 1 lakh rupees. Then section 12, registered office. Every company shall have a registered office within 30 days of its incorporation where all the communication and notices to the company are addressed, and it shall be at the registered address only. Verification of the registered office up to the ROC shall be filed within 30 days of its incorporation, and in case of change in registered office, information to the registrar within 30 days. If name is changed during the last 2 years, mention former name अंडर द न्यू नेम. अगर अभी इस साल से पहले 2 साल में कभी कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है तो अपने हेडिंग में अपने न्यू नेम के साथ अपना पुराना नाम दोनों मेंशन करेगी अपने न्यू नेम के अंडर, देन ब्रैकेट में. उसके बाद अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं हम, देन चेंज अगर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर है, सेम रजिस्ट्रार है लेकिन, तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पास करना है जनरल मीटिंग में और उसको ROC के पास फाइल कर देना विद इन 30 डेज. बट अगर चेंज फ्रॉम वन रजिस्ट्रार टू अदर रजिस्ट्रार है, चाहे स्टेट सेम है बट रजिस्ट्रार चेंज हो रहा है, देन स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस कन्फर्मेशन बाय रीजनल डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड एंड सच कन्फर्मेशन शैल बी कन्वेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 60 days. And within receiving the confirmation within 30 days, the registrar of companies shall issue a new certificate, and this certificate shall be conclusive evidence that all the formalities have been complied with. And in case of default of this section, the penalty is the same on company and the officer in default, that is 1,000 each day, subject to a maximum of rupees 1 lakh. के बाद ये टाइम पीरियड्स याद रखने हैं कि अगर वन सिटी टू अदर सिटी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होएगा और विद इन 30 डेज वो फाइल होएगा. रजिस्ट्रार टू अदर रजिस्ट्रार तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस कंफर्मेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर, और वो 60 डेज में ROC को बताना है और ROC विद इन 30 डेज जो है न्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा. उसके बाद ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम 13 में सेक्शन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन होता है हमेशा. चेंज इन नेम अप्रूवल बाय, अगर चेंज इन नेम है देन अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट ऑन एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट. देन चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वहाँ तो हमने कहा था स्टेट सेम थी बट रजिस्ट्रार चेंज हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ तो स्टेट चेंज कर रहे हैं तो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए इन एडिशन टू स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर. And this approval can be given within 60 days of making the application to the central government. Then after receiving the approval, file with the ROC special resolution and approval of central government. Thereafter registrar shall register the resolution within 30 days of receiving the confirmation and alteration of memorandum, and issue a fresh certificate of incorporation after cancelling the old one. इन सेक्शन 14 है ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. अगर कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक है या पब्लिक टू प्राइवेट है, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑल्ट्रेशन कंपनी सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी in case of private to public, and in case of public to private it shall be effected after the central government approval is acquired, and thereafter file with the registrar special resolution within 30 days. सेक्शन 17 है हमारा, जो कि है कंपनी टू प्रोवाइड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू इट्स मेंबर्स ऑन मेकिंग द रिक्वेस्ट विद इन 7 days. बाकी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीडिंग दे लेंगे, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक्ट बहुत बड़ा है ना तो इसलिए हम फटाफट कवर करेंगे. प्रमोटर हमने पढ़ लिया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु इज़ नॉट अ MD और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर एंड हैज़ नो पेक्यूनरी रिलेशन विद द कंपनी. की मैनेजरियल पर्सनल हमने पढ़ लिया. अच्छा ये पढ़ लेते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और OPC में मेंबर्स हमने देख लिए मिनिमम मैक्सिमम कितने चाहिए. डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में 3 और OPC में भी कितने चाहिए 1. डायरेक्टर मैक्सिमम 15 हो सकते हैं तीनों में. अगर इससे इंक्रीज़ करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए हमें कंपनी का.
एंड OPC इज अलाउड टू कन्वर्ट टू अदर कंपनी, नो रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद स्मॉल कंपनी पढ़ लिया हमने। स्मॉल कंपनी अगर कोई पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी जो है वो चाहे इस लिमिट में आ रही है बट स्टिल वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। कौन सी? पब्लिक, होल्डिंग, सब्सिडरी और सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। उसके बाद डोरमेंट कंपनी विच हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, इसको इनएक्टिव कंपनी भी कहते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। एसोसिएट भी हो गया। एसोसिएट हो गया ना, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर और कंट्रोल, दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसी और कंपनी के पास होता है। फॉरेन कंपनी हो गई निधि कंपनी। निधि कंपनी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग्स मेंबर्स एंड रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम लेंडिंग टू मेंबर्स। उसके बाद ये शेड्यूल्स है हमारे। शेड्यूल 1 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स है जो कि हमने पढ़ा है, टेबल ABCDE FGHIJ। ठीक है। उसके बाद 2 में डेप्रिसिएशन है। 3 में बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट है। शेड्यूल 4 में है कोड ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। शेड्यूल 5 में है MD, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन। शेड्यूल 6 में है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एंड शेड्यूल 7 में है CSR जो कि सेक्शन 135 में दिया हुआ जिसकी मेन प्रोविजन। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा चैप्टर 2 भी फिनिश हो गया। उसके बाद अब हमारा स्टार्ट होएगा चैप्टर 3 जो कि आता है सेक्शन 23 से लेके 42 तक। इसके जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो PAS के उसमें थे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, तो PAS। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।